Hello and welcome to the Ministry of Social Science. My name is Vivek Pandya and today we are going to start with the second chapter of Class 10 History for CBSE students. That chapter's name is The Nationalism in India. So, in the first chapter, we looked at the story of nationalism in Europe, how the spirit of nationalism in Europe was associated with the formation of new nation states, from modern states to nation states. And there was an understanding where people defined, they had this they forged a collective sense of belonging. So new ideas came up, new symbols came up, new songs, new national flags, all these things came up, and nation states were created in Europe. But what about India? Many other countries like India, how did this consciousness among the people emerge in countries like India? So, in India and in many other countries, the growth of nationalism is, we all know this, that it was directly connected to the with the anti-colonial movement. We had a foreign government in our country, and we were all not very unhappy with the rule of that government. So people began discovering their unity in the process of their struggle with the colonialism. They hated the colonial rule, they wanted their own government, and this is how a collective bond, a spirit of nationalism was forged among the people of India. So that sense of being oppressed under the colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. मतलब लोगों की जेंडर अलग है, लोगों का रिलीजन, कास्ट, people coming from different places all over the country, India, Pakistan, they were also not divided, but all these people, they had this common goal that they want to eradicate the foreign rule. So this was a time, this is how the spirit of nationalism was emerged in India. It was forged in India. And this chapter is will try to show few glimpses of that emergence of nationalism. नेशनलिज्म जस्ट स्टार्ट हो रहा था इंडिया के अंदर. मतलब इट वॉज देर वॉज अ स्लाइट छोटा सा उसके अंदर एक चिंगारी लगी थी, पर आग नहीं लगी थी अभी भी. तो वो आग लगाने का काम जैसे भी हुआ, जिससे भी हुआ, दिस चैप्टर इज़ अबाउट दैट. एंड इवन इन टुडेज टाइम मेनी ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कि जो इस आइडियाज़ को क्रिटिसाइज भी करते हैं, एंड देर आर अदर पीपल जो इस आइडियाज़ को फॉलो करके पूरे वर्ल्ड के अंदर दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. We are going to talk about Mahatma Gandhi, his principalities, and how the people of India were united. Okay, so these are the contents of this chapter. The chapter is divided into 4 subparts. The first part talks about the First World War, the Khilafat movement, and the national and the non-cooperation movement. And in the 8th standard, you have studied about the entire journey of Indian history up till the partition of India. So you know the story. I hope that every one of you would know what happens in the story. But this chapter is not the repetition of the entire thing which you read in the 8th standard, but it is going to be different. So let's say there was a non-cooperation movement. You know about the non-cooperation movement, but how the lives of the people affected? Why did the people join this movement? How were the people convinced to join this movement? What happened after the movement? So these are the types of questions which we are going to address in this chapter. So this is the first part of this chapter, where it talks about the First World War and the Khilafat movement and the non-cooperation movement. The second part, which talks about the differing strands within the movement. There are different types of categories, different people who were either supporting the movement or who were not in support of the movement. Then we'll talk about the civil disobedience movement. It was a second movement, which was second nationwide movement, which was launched by Mahatma Gandhi. And then instead of talking about the Quit India movement and other parts of the history, we will talk about the sense of collective belonging, because our chapter is about nationalism. So let's begin. So the chapter is going to start with the year 1919. Why? Because the First World War had just ended. First World War, which started from the year 1914 and it ended in the year 1918. So during this period, there were hell lot of political and economical changes which India as a country had to face. And बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता होती. इनको आज भी अगर ये क्वेश्चन पूछो, डिड इंडिया एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स, दे डायरेक्टली स्ट्रिक्टली से नो. बट ऐसा नहीं है.
इंडिया ने दोनों वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था. सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन था हमारा पार्टिसिपेशन यहाँ तक था कि हम लोग ड्यूरिंग दैट वॉर वी वर ऑल्सो प्रोवाइडिंग weapons, we were also providing the army, the soldiers, we were also providing food for the soldiers, for the people in Europe. हम लोग यहाँ पे हमारे लोग भूखे मर रहे थे पर हम लोग वहाँ पे अभी भी खाना भेज रहे थे. सो दिस वॉज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन. सो इट कैनॉट बी अंडरलुक्ड अपॉन. ये कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था. एंड टू रिमेंबर दिस, टू इसकी मेमोरी के अंदर हमारे कंट्री के कैपिटल के अंदर there is a memorial located alongside the Rajpath. I'm talking about the India Gate. India Gate it was originally known as the All India War Memorial. It was created in the memory of the 70,000 soldiers of the British Indian Army who died during the First World War. And there were many other people who died in India during that First World War. So these were the soldiers who fought in France, Flanders, Mesopotamia, Persia, East Africa, very, very other places. So these are the people who fought, and in their memory this monument was created. And there was an Imperial War Graves Commission which was created by the British government in the year 1917. And there was the Viceroy of India, James Ford. He said this, that the stirring tales of individual heroism will live in the annals of this country forever. Okay, so this should not be left out. We should all know this, that India was one of the countries which participated in both the wars. और हमारे कंट्री के अंदर इंडिया गेट इसीलिए क्रिएट किया गया है बिकॉज इट स्टैंड्स इन द मेमोरी ऑफ ऑल दोज सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ while fighting for the British Army in the both the wars. So what was the impact of this war on the society of on Indian society? इसके इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या थे? यू नो व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसकी वजह से लोगों के मन में गुस्सा आ रहा था. वी इनिशियली पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर वेरी हैप्पीली. वी थॉट दैट द पीपल, एवरीवन थॉट दैट अगर हम लोग ब्रिटिशर्स की अगर फेवर करेंगे, अगर इफ़ वी अलाउ देम, इफ़ वी हेल्प देम गेट आउट ऑफ दिस वॉर, तो शायद वो लोग हमसे खुश होके दे विल फेवर अस, दे विल रिवॉर्ड अस विद सम ऑटोनॉमी. इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे हम लोग, लेकिन मे बी सम सेल्फ गवर्नेंस, कुछ तो हमें देंगे. बट सिचुएशन कुछ और था. तो पहले तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे कंट्री में उस टाइम पे कैसा था? एक चीज़ हम सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट वेन एवर देर इज़ अ सिचुएशन ऑफ वॉर, इट क्रिएट्स ह्यूज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर. हमेशा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो होता है वो इसके अंदर बढ़ ही जाता है. ओके, सो द एक्सपेंडिचर वॉज इंक्रीज्ड. तो ये इसको फाइनेंस करने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लोन्स लेने पड़ रहे, और इस लोन को चुकाने के लिए उनको करने पड़े टैक्सेस इंक्रीज. सो देवर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लाइक द कस्टम ड्यूटीज, देन इनकम टैक्स, जिसको आज हम लोग सब लोग जानते हैं. So the concept of income tax was introduced in India during that time. तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, इनकम टैक्स उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया. देन ये जो पीरियड जो था फ्रॉम 1913 टू 1918, ये पीरियड के अंदर मैनी ऑफ द पीपल दे वर फेसिंग हार्डशिप. वाई? बिकॉज प्राइजेज राइज हो रही थी. प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो हर चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा. एंड फूड शॉर्टेजेस. वाई? बिकॉज अवर फूड, एक तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं. अगर यहाँ पे अगर कभी क्रॉप फेलियर हो गया तो तब फूड सिक्योरिटी का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था. फूड सिक्योरिटी का सिस्टम भी इन लोग ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनको रियलाइज़ हुआ, तब जाके इन लोग ने क्रिएट किया था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो वो भी नहीं किया था. सो देयर वाज नो फूड सिक्योरिटी. हमारा खाना अगर बाहर जा रहा है तो हमारे लोग क्या करेंगे? सो दिस वॉज अनदर प्रॉब्लम. इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ ऑल द एसेंशियल गुड्स. शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया वहाँ पे, तो लोग हंगर की वजह से मर रहे हैं, तो एक्सट्रीम हार्डशिप वहाँ पे लोग फेस करें. दिस वॉज अनदर प्रॉब्लम. देन देयर वाज फोर्स रिक्रूटमेंट. ये क्या होता है कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स द पीपल टू ज्वाइन द आर्मी. मतलब ज़बरदस्ती आर्मी में आके तुम भर्ती हो जाओ टू फाइट फॉर द नेशन, टू फाइट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो विलेजर्स दे वर ऑल कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. उनको बोला कि भाई तुम सोल्जर्स सप्लाई करो, और इसकी वजह से रूरल एरियाज़ के अंदर देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर. देन इन द ईयर 1918, 1920 क्रॉप फेलियर हो गए, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया. देन देयर वाज अनदर पार्ट जिसके बारे में आज हम लोग सब लोग इस चीज़ से परेशान हैं. एग्जैक्टली आफ्टर 100 years वी आर फेसिंग अ सिमिलर सिचुएशन.
वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस। एंड उस टाइम पे इन द ईयर 1919 एक और तरीके का फ्लू था जिसको बोलते हैं स्पेनिश फ्लू। इट किल्ड ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल। तो बहुत लोग उस टाइम पे मरे थे। यस, 10 मिलियन पीपल इन इंडिया। तो तो इतने सारे लोग उस टाइम पे इंडिया में मरे थे बिकॉज ऑफ दैट वन फ्लू। उस टाइम पे भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ें फॉलो करने लगे थे, क्योंकि वो भी एक ऐसी चीज़ थी कि जो ऐसा बोलते हैं कि कुछ वायरस था कि जो डायरेक्टली हमको इट हैन जो होता है, मुर्गी जो होती है, उसके अंदर होता था वो वायरस, लेकिन वो डायरेक्टली हमको अफेक्ट नहीं करता था। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन अ हैन एंड अ पिग, ये दोनों कुछ साथ में आए और इन दोनों के अंदर वायरस म्यूटेशन हुआ और वो वायरस ने ह्यूमंस को मतलब इन्फेक्ट किया और फिर वो पूरे हमारे सभी ह्यूमंस को वो फैलने लगा। तो स्पेनिश फ्लू इट केम टू इंडिया, destroyed the lives of people. So many people died. So this is a very important question to understand the political and economic situation of India during the First World War. तो ये चार इसकी चीज़ें थी। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, शॉर्टेजेस ऑफ फूड, then there was forced recruitment, then there was this influenza epidemic, and 12 to 13 million people overall died because of the famines and the epidemic. इसके बाद हम लोग बात करेंगे द लीडर हु अपियर्ड ऑन द सेंटर स्टेज ऑफ इंडिया, और जिसने आके सीधा स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया। स्टीयरिंग व्हील एक ऐसी कार का जो इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जा रही थी। सो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट महात्मा गांधी। वी ऑल नो दैट महात्मा गांधी ही रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, एंड बिफोर दैट वो साउथ अफ्रीका के अंदर सेटल्ड थे। एंड साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे। एंड this is an image of his satyagraha in South Africa, where Indian workers in South Africa, they were marching through work crushed on 6 November 1913, and Mahatma Gandhi was leading the workers from Newcastle to Transnaval. And when the marchers were stopped, Gandhi ji was arrested. तो जैसे कभी क्या होता है कि कभी भी कोई ऐसे बड़े लीडर का जब भी अरेस्ट होते हैं तो लोग वहाँ पे एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है, एंड पीपल स्टार्ट बीटिंग द पुलिस, और वायलेंस का हो जाता है, वहाँ पे वेपन्स उठा लेते हैं। बट व्हाट हैपेंड हियर वाज व्हेन गांधी जी वाज अरेस्टेड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, दे जॉइन टुगेदर, और उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया अगेन द रेशियल लॉज, अगेन द और उन लोग ने ये नॉन वायलेंस को डिनाई कर दिया। आई मीन ये नॉन वायलेंस का उन लोग ने प्रीच किया, और नॉन वाइट्स के जो राइट्स थे उसके अगेंस्ट उन लोग ने फाइट किया, उसके लिए उन लोग ने फाइट किया। ओके, आपको पता है साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड का रेजाइम था, सो दैट एग्जिस्टेड इवन एट दैट टाइम। तो ऑल दीज पीपल दे केम टुगेदर एंड दे फॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू लर्न इज, ये जो रेसिस्ट रेजाइम के अगेंस्ट ये जो नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, नॉवेल का मतलब न्यू मेथड ऑफ मास एजिटेशन जो गांधी जी ने जो डिवाइस किया था, विच वॉज नोन एज सत्याग्रह, इसका मतलब क्या होता है एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है किसी के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी बोलते थे कि ये एक पैसिव रेजिस्टेंस का तरीका है। एंड इसको समझने के लिए जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी कि गांधी जी जब सत्याग्रह जब कर रहे थे, जब उनका फर्स्ट टाइम जब ये चीज़ जब वो कंडक्ट कर रहे थे, तो उनके साथ कुछ हुआ था। व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, इफ़ यू आर नॉन वाइट, तो आपको आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड रखना है, एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट आइडेंटिटी कार्ड तो आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। सो गांधी जी एंड ऑल द पीपल, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इफ़ साउथ अफ्रीका इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन, तो फिर हम लोग को भी ब्रिटिश सिटीजन्स के जैसा इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी कॉल्ड अपॉन एवरीवन, सबको बुलाया एंड एक स्पीच दिया, लोगों को बताया कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस, हम लोग ये जो आइडेंटिटी कार्ड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो बेसिकली किया क्या, एक फायर एल्टर लगाया था उन्होंने, एंड इन दैट फायर एल्टर ही स्टार्टेड बर्निंग द आईडी कार्ड्स, एक एक करके उन्होंने सबके आईडी कार्ड वहाँ पे जलाने लगे। सो देयर वाज अ पुलिस मैन हु कम्स अप हाथ में डंडा लेके, एंड ही वॉर्न्स हिम कि अगर आपने एक और आईडी कार्ड अगर यहाँ पे डाला तो हम आपको मारेंगे। पर गांधी जी का स्टैंड ये था कि इफ़ माई फाइट इज़ फॉर द ट्रूथ, अगर मेरी बात सही है, अगर मैं इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, देन मुझे कोई नहीं रोक सकता। सो व्हाट ही डिड वाज, भले उन्होंने वॉर्न किया पुलिस वाले ने, फिर भी उन्होंने वहाँ पे आईडी कार्ड्स जलाने लगे। सो द पुलिस मैन कम्स अप टू हिम एंड ही बीट्स हिम, पहली बार हाथ पे मारा, थोड़े वीक हो गए, देन ही अगेन लिफ्ट, थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर से 2-3 कार्ड्स उठाए और अंदर डाले, एक और
लाठी से एक और फटका मारा उनको, एंड अगेन ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। पुलिसमैन एकदम जोश में वो बोल रहा है सब लोग को चले जाओ यहाँ से, धमका रहा है लोगों को। बट देन व्हाट हैपेंड वाज गांधी जी स्टूड अप अगेन, एक और बार खड़े होकर उन्होंने एक और बार कार्ड डाला अंदर। एंड दिस टाइम व्हेन ही वाज, जब वो कार्ड अंदर फायर एल्टर में डाल रहे थे, उस टाइम पे पुलिसमैन ने बोला कि अगर डाला तो मैं सर पे मारूंगा। एंड ही स्टिल पुट्स द कार्ड्स इन द फायर एल्टर, सर पे भी एक डंडा पड़ता है, एंड उसके बाद मतलब ऐसा लगता है कि ये अभी बेहोश हो जाएंगे। बट थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा बहुत होश संभाल के एक और बार खड़े होके एक और बार कार्ड डालते हैं। व्हाट हैपेंस इज, वो जो पुलिस वाला होता है ही स्टॉप्स बीटिंग हिम। उसके अंदर का कॉन्शियस वहाँ पे राइज हो गया, एक परसुएड हो गया वो इंसान कि मैं इसके साथ करूँ क्या। सो देर आर टू टाइप ऑफ पीपल जो ऐसा बोलते हैं कि गांधी जी ने ये सिखाया था कि कोई अगर आपको एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे करो, एंड दिस इज़ व्हाट वीक पीपल डू। भाई बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए अगर आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मार रहा है और अगर आपको पता है कि दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मारने वाला है, इस फिर भी आप थप्पड़ खा रहे हो तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पर इसका फ़ायदा देखो, अगर उसको सामने थप्पड़ मारा तो ये झगड़ा अभी और बड़ा होने वाला है। दिस फाइट इज़ नॉट गोइंग टू एंड। बट इफ़ यू स्टॉप बीटिंग, अगर आई फॉर एन आई, अगर आप उस चेन को अगर आप तोड़ रहे हो, सामने वाला इंसान परसुएड होगा, उसके अंदर से सेल्फ, अंदर उसका जो सेल्फ जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा तब उसके मन से वो आवाज़ आएगी कि ये तो मुझे नहीं मार रहा, मैं इसको क्यों मार रहा हूँ। एंड दिस इज़ हाउ पीसफुली द सोसाइटी शुड लिव। ये गौतम बुद्ध का भी प्रिंसिपल था कि हम लोग को नॉन वायलेंस प्रीच करना है, उससे हम लोग सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गांधी जी का भी यही एम्फेसिस था। एंड गांधी जी ने बोला था सत्याग्रह इज़ अ प्योर सोल फोर्स। आपके सोल मतलब आपकी आत्मा का आवाज़ आना चाहिए। और इसके बेसिस इसके दो इंग्रेडिएंट्स, एक होता है ट्रुथ एंड द अदर इज नॉन वायलेंस। सो ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, दैट इज़ वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। सत्याग्रह को अगर आप इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हो, इट मीन्स द इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ। ठीक है, आप किसी के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हो ट्रुथ। एंड बाय दिस स्ट्रगल द ट्रुथ वॉज बाउंड टू अनटाइमली ट्रायम्फ। ट्रुथ का यहाँ पे जीतना है वो पक्का है। ठीक है, तो इनका पूरा एक मेथडोलॉजी था। गांधी जी बोलते थे कि दी आइडिया ऑफ सत्याग्रह इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ। ठीक है, आपकी बात सही होनी चाहिए एंड you have to there is a need for the search of truth. Then he suggested that if your cause was true and if the struggle was against injustice, then you don't need any physical force. कोई फिजिकल फोर्स नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई वायलेंस की प्रैक्टिस नहीं। आपका फाइट अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस विदाउट बीइंग एग्रेसिव, विदाउट सीकिंग वेंजेंस। आप ये सब कुछ भी करे बिना आप आपका फाइट जीत सकते हो। ये कैसे होगा, तो उसका भी उन्होंने आंसर दिया। ही सेड दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। उसके मन से अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि भाई वो कुछ गलत कर रहा है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स दे हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। भाई आप सच देखो, कि मन में से देखो कि क्या सही है, आप मार रहे हो क्या वो सही है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस, आप लोगों को परसुएड करो। जब परसुएड करके जब सामने वाले के मन से जब आवाज़ आती है ना, सेल्फ रियलाइजेशन से जब ये आवाज़ आती है ना, तो उसके बाद कुछ भी वो प्यार से अपनी मर्जी से वो चीज़ करेगा। इट्स लाइक देयर आर पीपल हु ट्राई टू टेल यू कि आपको पढ़ना चाहिए, यू आर इंटेंशनल, यू ऑल नीड टू स्टडी। पर जब तक ये चीज़ आपके मन से रियलाइज़ नहीं होगी, दैट सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि भाई मुझे पढ़ना चाहिए, तब तक आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं पढ़वा सकता। आपको कितना ही मारे, कुछ भी करे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। ठीक है, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन इज नेसेसरी। एंड गांधी जी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस इट कैन यूनाइट द इंडियंस ऑल ओवर। ठीक है, तो ये गांधी जी का डीप मीनिंग था ऑन सत्याग्रह। एंड इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज़ अ सोर्स गिवन जहाँ पे सत्याग्रह को थोड़ा और डिटेल में वहाँ पे और उसके बारे में बताया है। डू गो थ्रू इट, थोड़ा और उसके बारे में समझोगे। व्हाट इज़ द फ्लेम ऑफ लव, नॉन वायलेंस इज़ द सुप्रीम धर्म, इन सब के बारे में वहाँ पे अच्छे से बताया है। एंड गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया इन द ईयर 1915। तो वो आके सीधा उन्होंने इट डिड नॉट राइट अवे केम एंड टुक द स्टीयरिंग व्हील इन हिज हैंड। उनको इंडिया के बारे में इतना सब नहीं पता था। ही हैड लिव्ड सो मेनी ईयर्स आउटसाइड द कंट्री। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, इनको सजेस्ट किया कि
आप पहले इंडिया का एक दर्शन करो, भारत दर्शन करो. इफ़ यू वांट टू फाइट फॉर इंडिया, अगर आपको इंडिया को अगर इंडिपेंडेंस दिलाना है, देन गो एंड सी व्हाट एक्चुअल इंडिया इज़. तो ट्रेन में जाके पूरे कंट्री के अंदर पूरा कंट्री ट्रैवल करते हैं टू अंडरस्टैंड इंडिया, टू सी द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. एंड फाइनली उनको 1917 के अंदर ही ट्रैवल्स टू अ विलेज इन चंपारण, जहाँ पे उन्होंने अपने फर्स्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था इन इंडिया. एंड यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम. तो चंपारण विच इज़ लोकेटेड इन बिहार, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, मैंने मैप में यहाँ पे बनाया है, ठीक है. तो चंपारण के अंदर उन्होंने अपना फर्स्ट सत्याग्रह किया था इन द ईयर 1917. देन ही गोज टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ खेड़ा इन गुजरात, वेरी नियर टू अहमदाबाद. यहाँ पे द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर द पीजेंट्स जो थे उनको क्रॉप्स उनके फेल हो गए थे. देयर वाज अ प्लेग एपिडेमिक एंड द पीजेंट्स कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड दे वर डिमांडिंग कि रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा रिलैक्स करो. तो उनके लिए भी उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. देन अहमदाबाद के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स, इनका प्रॉब्लम ये था कि उनको जो वेजेस थे उनको वो इंक्रीज़ करवाने थे. तो उसके लिए उन्होंने, गांधी जी ने 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर थर्ड सत्याग्रह उनका ऑर्गेनाइज किया. तो दीज वर द फर्स्ट 3 सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2 टर्म्स, एक तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है एंड ये डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ओके, so this was the first lecture of this video. If you like this video, please hit the subscribe button, share this video with as many people as you can. This is the home assignment for the day. If you have any problems, any doubts, you can mention it in the comment section.